ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارے میں فقیرہ بول رہا ہوں، کہاں سے؟ سورت سے۔ اچھا بولو صاحب۔ ارے کیا، لیکن آپ نے یار آڈیو میں آپ کی سنتے رہتا ہوں، پر آپ نے آڈیو ابھی تک کے ڈالی نہیں ہے وہ جاوید خان کی۔ جاوید خان کی؟ جی جی، آپ نے کیوں نہیں ڈالی؟ میں آپ نے ابھی جو 2 ڈال دی، اپڈیٹ کر دی آپ نے چینل کے اوپر، 2 نئی ڈالی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ڈالی آپ نے؟ چلو ابھی وہ کیا انہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ ابھی ڈلے گی، تھوڑا ٹائم رک جاؤ انشاءاللہ، شاید کل تک ڈل جائے، آج رات تک ڈل جائے۔ دیکھیے سچی بول رہا ہوں، میں سنتا ہوں آپ کے، میں نے دیکھا ابھی آپ نے دوسرے ڈالی آپ نے، لیکن وہ نہیں ڈالی آپ نے۔ چلو ڈل جائے گی، بے فکر ہو، بے فکر ہو سچی صاحب۔ پکا نا؟ انشاءاللہ آج رات کو، نہیں تو انشاءاللہ کل تو۔ آج رات کو یا کل؟ ہاں دیکھتا ہوں، ابھی انہیں ٹائم ہوگا تو وہ بھی ڈال دیں گے رات تک۔ جی اور کس کا شکریہ۔ مرید ہو صاحب، آپ کس کے مرید ہو؟ جی میں تو حضور طالب شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ مرید ہوں۔ کیا مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے آپ کے پیر؟ نہیں کون؟ وہاں کے پیر، آپ کے پیر جو ہیں بریلی والے، یہ مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کو مسلمان نہیں مانتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے نا؟ کیا وہاں کے پاس کافر ہیں امام لوگ؟ نہیں پر وہ اس کی وجہ تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی۔ نہیں کافر کے نہیں، کیا وجہ ہے وہ آپ بتاؤ نا، کیوں کافر مانتے تھے وہاں کے اماموں کو آپ کے پیر صاحب اظہری میں نہیں تو نہیں، عقائد درست نہیں ہے نا۔ آپ بتاؤ، میں سید بھی ہیں، اصلی سید ہیں وہاں، صحابہ کی اولاد ہیں وہاں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام۔ نہیں دیکھیے، بات اگر ایسی ہو کہ اگر جب انسان کی عقائد خراب ہو جائے، بندہ حد کفر تک پہنچ جائے، تو پھر وہ سید کے نہیں رہتے نا پھر وہ۔ تو یزید کا عقیدہ کون سا درست تھا؟ اس کو بھی کافر نہیں کہا فاضل بریلوی نے؟ نہیں، یزید کے بارے میں تو دیکھیں نا، الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ اور حضرت ابو طالب کو تو ایک دم کافر مانتے ہیں بریلی والے، حضرت ابو طالب کو۔ ہاں جی ہاں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے تو پھر تو بزرگوں کا عقیدہ جو ہے وہ تو وہی بیان کرے گا نا۔ علامہ شاہ رحنی والا مکی تو مسلمان مانتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ اختلاف موضوع ہے نا وہ۔ اب کیا کیا جائے صاحب، یہ بھی بڑا چکر ہے صاحب۔ نہیں وہ دیکھیے وہ ارے صاحب تو بڑا اختلاف چکر موضوع ہے، تو اختلاف یہ موضوع راندیر میں ہے۔ آپ کے سورت میں ابھی جو دیکھیے، راندیر ہے، راندیر کتنے دور ہے آپ کے یہاں سے؟ یہاں سے کم سے کم 13-14 کلومیٹر ہے۔ تو وہ سب کافر رہتے ہیں وہاں پر جتنے بھی ہیں؟ ہاں، سب سے نہیں، سب کافر کو نہیں دیوبندی ہے نا، وہ کسی کا بتاتے ہیں کہ دیوبندی سب کافر ہے کیا؟ نہیں، سب کے سب کافر تھوڑی ہے دیوبندی۔ کس نے کہا آپ کو کہ ہر دیوبندی کافر ہے، یعنی کہ 3 دن کی کون جماعت سا میں چلا گیا دیوبندی کافر ہے، کون سا مسلمان ہے، یہی پتہ نہیں ہاں چلتا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دیوبندی مدری کافر میاں ہے۔ نے بتایا تھا کہ مدری میاں نے کہ دیوبندی کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، تو کلیم حنفی نے کیوں مخالفت کی پھر؟ ابھی دیکھیں، آپ نے ایک چیز سنیں گے آپ کو، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اب آپ ہے کہ آپ چلو لگاتار آپ بولتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز بتا۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ ہر دیوبندی کافر ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دیوبندی کافر نہیں ہے۔ کافر دیوبندی وہ ہے جو حد کفر کو پہنچ جائے۔ حد کفر سے مراد یہ ہے کہ جو عقائد علماء دیوبند ہے، یعنی کہ جو رشید احمد نقوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، یہ جو 4 اکابر دیوبند جن پر حسام الحرمین میں فتویٰ لگا، اگر ان کی عبارات کو وہ جانتا ہے اور ان عبارات کو لکھنے والوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے بالکل جو لکھا وہ بالکل درست لکھا، میں اس کو سچ مانتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، تب اس پر فتویٰ لگے گا کہ اب یہ ان کی طرح کافر ہے۔ اچھا، اگر جو نہیں جانتے ان باتوں کو، جو ان باتوں نہیں جانتا وہ تو مسلمان ہے؟ ہاں جی ہاں، وہ تو مسلمان ہے نا دیوبندی؟ نہیں سنے بات، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ ارے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے، نہیں جانتا پھر بھی مسلمان نہیں ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی نا، میں نے کب بولا آپ تو کو پھر مسلمان تو مانیں گے نا اس کو؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمان تو مانیں گے نا، تکفیر نہیں کی جائے گی تو؟ ہاں گمراہی ہے، ضرور ہے، گمراہ ضرور ہے۔ ارے یعنی نہیں جانتا پھر بھی مسلمان ہے، عجیب ڈرامہ ہے صاحب، عجیب ڈرامہ۔ اب عجیب ڈرامہ نہیں ہے، اب مجھے ابھی بتاؤ کہہ رہے تھے کہ ہر دیوبندی جو کافر نہیں، پھر کہہ رہے ہو کہ نہیں گمراہ مانیں گے، جو نہیں جانتا اس کو بھی گمراہ مانیں گے، وہ جانتے نہیں وہ گمراہ کافر ٹھیک ہے ہوگا۔ نا، ہاں تو گمراہی کے راستے پر ہے نا۔ نہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے پھر تو مسلمان مانیں گے۔ نہیں ایسی بات تھوڑی ہے۔ جیسے دیوبندی کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، ان کی ہر بات مانتا ہوں، جیسے اللہ رسول کی بات مانتے ہیں ایسے ہر بات مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانے گا پھر تو مسلمان ہو جائے گا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کے عقائد سے متفق رہے گا تو بالکل نہیں، وہ اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی ہر بات مانتا ہوں، جیسے اللہ رسول کی ہر بات مانتا ہوں ایسے اعلیٰ حضرت کی ہر بات مانتا ہوں، پھر تو مسلمان مانیں گے۔
नहीं देखिए, आप ये जो कम्प्रोमाइज जो एक आप मुकाबला करवा रहे हो ना, और एक जो अरे वो जगह शमशाद खड़ा गोसी करने की साहब कोशिश ने कर, कहा था कि जो मसलक की हालत को नहीं मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेगा। हाँ तो उससे मुराद क्या है? उससे मेरा वही हालत की हर बात मानो। नहीं, हर बात मानो से मुराद ये है कि आला हजरत से जो अकायद व नजरियात आला हजरत ने जो बयान किया है उससे मुत्तफिक होना। तो देखिए, एक आम मुसलमान के अकीदे, जैसे मैं मुसलमान हूँ, तो अब मुसलमान के अकीदे से जो हटकर गुफ्तगू करेगा वो कहाँ से मुसलमान होगा? ये तो उसका फैसला आपको भी होगा। ये दावत इस्लामी वालों का अकीदा है कि कब्र में शैतान आता है, बेकार नहीं, क्या सही है? क्यों नहीं आता है? अरे आपका भी अकीदा है? नहीं, तो ये मतलब ये जो ये नई बातें, यही बातें मानना पड़ेंगी फाजिल बरेलवी की। चले, अब मैं एक चीज आपको पूछता हूँ। ये साहबा का अकीदा था कि कब्र में शैतान आता है, साहबा का अकीदा। चले, अब आपने बीच में साहबा के बारे में आपका क्या अकीदा है? क्या उनकी कब्र में भी शैतान बेकार है? सुनो तो सही, मेरी बात तो सुने। आपने नवादुर रसूल के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि शैतान अपनी तरफ इशारा करता है कब्र के अंदर। हर मोमिन की? मुसलमान के कब्र में आता है। तो फिर साहबा के बारे में क्या अकीदा है आपका? जो रिवायत के अंदर है वही। अस्तगफिरुल्लाह, साहबा तो जन्नती हैं सबके सब। हाँ, तो उसमें किसी तो क्या उनकी कब्र में भी आके भगाएगा? ये हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं ये बताओ, साहबा के बारे में तो आपका अकीदा ये है ना, जन्नती है सब। मैंने आपको नवादुर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या वो उनको मान लेते हैं, शैतान की बात मान लेते हैं वो? नहीं, जब दुनिया में शैतान नहीं दिखता तो मरने के बाद कैसे दिखेगा ये कब्र में? ये कहाँ से उसूल आपने निकाल लिया? तो मरने से पहले दिखना चाहिए ना शैतान को। नहीं, तो यानी कि आपने उसूल कहाँ से निकाल लिया कि जो वही तो ये उसूल कहाँ से लिया है कि कब्र में शैतान को घुसड़ दिया मरने के बाद, रूह के निकलने के बाद अब शैतान का क्या मतलब है? इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आप जूती क्या चलते चलते आपको आपकी जूती की आवाज आती है? अच्छा साहब, हाँ फरमाओ। आती है। हाँ सुनो। आप चलते हैं? नहीं, आप जब चलते हैं तो आपको आपकी जूती की आवाज आती है? हाँ आती है ना, थोड़ी थोड़ी नहीं, क्लियर आती है एकदम। हाँ एकदम साफ आती है। हाँ, कहना क्या चाहते हो बताओ। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप जब कब्र में लेट जाएंगे तो आपको जब दफन करके चले जाएंगे तो कब्र के इतने नीचे 40 कदम के आगे जब जाएंगे मुसलमान दफन करके, तो मुझे बताएं उसकी जूतों की आवाज आपको इतनी नीचे कैसे आ जाएगी, और वो भी एकदम क्लियर कैसे आएगी? हाँ, तो कैसे आएंगे बताएं। इससे क्या मतलब मुराद है कि कहने का मतलब शैतान आता है? नहीं, आपने ये कहा कि जो दुनिया में दिखाई नहीं देता वो मरने के बाद क्यों दिखाई नहीं देता? नहीं तो ये बताओ, आपके मरने के बाद शैतान आता है यार, तो फिर कब्र से मैं दफन होने से पहले अजान दे दूं ना, एक बार पहले अजान दे दो तो शैतान आए। अच्छा, तो सीधा बोलो ना, आपको अजान कब्र पे प्रॉब्लम थी यार, पहले बोल देते ना। अजान कब्र पे नहीं जी, मतलब ये कि आप एक अजान क्यों देते हो? दो ना, एक पहले दो दफन से पहले दो, एक दफन के बाद दो। नहीं, आपने अभी अजान कब्र का बताओ, दो अजान देना मना कहाँ लिखा बताओ आप। मना कहाँ लिखा है? कब्र से दफन से पहले अजान देना मना, बताओ आप, मना का सबूत दो आप। हंस रहे हो आप तो। ऐसे में सुने अब मेरी बात बना रखे इन लोगों ने। नहीं, अब मेरी बात तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। फरिश्ते सुन रहे हैं मेरे कांधे पे है ना, जो फरिश्ते सुन रहे हैं, किरामन कातिबीन याद रखो। किरामन कातिबीन सुन रहे हैं, जो आप बता रहे हो सब सुन रहे हैं। हाँ, तो ये सुन भी रहे और वो लिख भी रहे। हाँ, अब ये बताओ कि कब्र में जब शैतान आएगा, ये पाँव की साइड से आएगा या सर की साइड से आएगा? अरे आप पहले मेरी बात तो सुने यार, आप अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, कब्र में तो ये सबका अकीदा अल्लाह के रसूल का दीदार होगा। चलो ठीक है, मैं एक चीज आपको पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल का दीदार होगा कि नहीं कब्र में? अल्लाह के रसूल का दीदार तीसरे सवाल में। अरे भाई मेरी बात सुनिए, हाँ आप अपनी बोलते जाते हो और मुझे कुछ बोलते नहीं देते हो। अरे आप तो एक शैतान नहीं, दो शैतान घुसड़ दो कब्र में, हमारा क्या जा रहा है? सुनाओ, मनमानी करो, दो घुसड़ दो, चार घुसड़ दो, 5 शैतान घुसड़ दो, हमारा क्या जा रहा है? आप बोलने में देते हो यार। आप सुनाओ साहब। अब आप ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप ये जो दावत इस्लामी वालों ने कहा कि कब्र में शैतान आता है, तो ये उन्होंने गुस्ताखी की? अरे दावत इस्लामी वाले ने तो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया इलियास ने, मीठे रसूल, हाँ मीठे रसूल कहलवाया, और अपने आप को प्यारे बप्पा जान कहलवाया। बराबर। तो ये मुफ्ती समर अख्तारी को मीठा क्यों नहीं कहा? मुफ्ती समर अख्तारी है मीठा, मुफ्ती हबीब है और इमरान है, इनको क्यों मीठा नहीं कहा कभी? इनकी बेटी को मीठा क्यों नहीं कहा? हबीब की बेटी को कितनी मीठी थी, किस कदर मीठी थी, आपको मालूम होगा। अब आप बोलने भी नहीं देते हैं मुझे। इरशाद फरमाओ।
दाऊद इस्लामी के बारे में ही बताओ, दाऊद इस्लामी वाले सही है गलत? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जो दाऊद इस्लामी वालों ने कहा, आपकी नजर में क्या गुस्ताखी है? अजहरी मियां ने जब ये कहा कि ये मसले की हालत के मुबल्लिग नहीं है, तो फिर अजहरी मियां को अगर मानते हो, आप पीर मानते हो, तो उनकी हर बात मानो, नहीं मानते तो कह दो कि हम आप ने गलत बात की, सब बताइए। ये गलत बात है यार। आपके मैं इतने वीडियो सुनता हूँ ना, फिर आप यार बहस ये किधर लेके जा रहे हैं आप? बहस करोगे, आप अच्छे से बात करेंगे तो आप बताओ दाऊद इस्लामी के बारे में। ठीक है, सही करके बताओ, उसे एकदम प्योर वली साबित करना है तो वली साबित करो इलियास को आप। ठीक है, मैं करता हूँ ना। आप थोड़ा रुके तो पहले मेरी बात है, एक एक अपन है ना, धीरे धीरे चलते हैं। इसके बाद गुलाम कादियानी को भी वली साबित करना, गुलाम कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, फिर उसे सही साबित करना आप। बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। दाऊद इस्लामी वाले ये इलियास अस्गर कादरी की जो आप इबारतें मुझे बता रहे हैं, ये गुस्ताखी है या नहीं? हाँ या ना? तो गुलाम कादियानी की भी बातों में कहाँ गुस्ताखी थी? है ना गुस्ताखी? हाँ तो फिर इसकी भी बातों में गुस्ताखी। हाँ ठीक है, आपने मान लिया इस बात को कि नहीं, मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा, कुफ्र का फतवा। ठीक है, हाँ सफा 1283 कि हम ईद क्यों न मना रमजान की बात, तो क्या गलत फतवा दिया जाम नहीं है वालों ने? अब मेरी बात सुनिए, आप उससे मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल। चले एक दूसरी बात भी, इसका मतलब आप अपने पीर से मुत्तफिक नहीं हो, कच्चे मुरीद हो आप। आपके पीर ने कहा कि इन लोगों ने टीवी से बताया, अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। आपका पीर का बयान तो बहुत सख्त है इनके खिलाफ। फिर आप सुलह कुल्ली कैसे हो रहा हो? आप मुजब्जब सुलह कुल्ली पहले सुनी कैसे बन रहा हो आप? यार आप मुझे बोलने नहीं देते हो। बोलो एक बात करता हूँ तो आप तो इलियास काजी को बिल्कुल प्योर वली बना दो, आपकी मर्जी। मैं और गुलाम कादियानी को भी वली बना दो, कह दो कि वो उसके ऊपर भी इल्जाम थे, गलत उनकी बातों की गलत तशरीह की गई। आपकी फिर वीडियो देखना बंद कर देना पड़ेगा। इरशाद फरमाओ। हाँ बस, तो आप बोलो ना, आप जवाब दो ना, बोलो आप। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ। आपने मान लिया इस बात को कि इलियास अस्गर कादरी ने जो लिखा वो गुस्ताखी है और उसको आपने कुफ्र मान लिया। तो अब ये मुझे बताइए, गुस्ताखी जो है ये सही मुतय्यन है या मुतबय्यन है? एक ये बात बताओ आप। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जो कुफ्र का फतवा जामिया से लगा, क्या गलत है? तो वो सही मुतय्यन है मुतबय्यन है? नहीं, कुछ भी लगा तो है ना कुफ्र का फतवा। नहीं वो मुझे आप बताएंगे। चलो ठीक है, चलो मान लेता, अगर वो फतवा लगाया है तो मुझे बताओ, जो अब इलियास अस्गर कादरी को मुसलमान समझे, जो इसने सहाबा किराम को बोला था वो मुजद्दिद नहीं है, मैं भी नहीं हूँ मुजद्दिद, अपने आप को सहाबा से जोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ उसने वो जो बताया आपके पीर ने अजहरी मियां के टीवी से बताया, अल्लाह के रसूल की आवाज आई। अरे यार देखो मैंने आपको क्या ये भी कुफर नहीं है? ये भी कुफर नहीं है। आप इसे 10,000 बातें टीवी को ये कहता था इलियास काजी मारो शैतान को, तो उसी टीवी से इसके आदमी ने बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा। मैंने आपको कह दिया ना कि आपने जितनी भी बातें बताई उसके ऊपर आपने कहा कि कुफर का फतवा है। ठीक है, यहाँ बात खत्म है। हाँ तो ठीक है, अब आप यहाँ आगे ना बढ़िए, विषय को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात खत्म मत करो, या आपके पीर को आप गलत मानो कि मेरे पीर ने इसके बारे में बताया गलत बताया। यार आप मुझे यार बात करने देते हैं यार, आप सुना फोन काट दूंगा, कोई मतलब नहीं। नहीं सुना। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा तो शांति रखो ना 2 मिनट में। अब देख, जब आपने मान लिया कि ये 10 इबारतें जो लिखी है सब गलत लिखी है, गुस्ताखी लिखी है और जामिया जो भी है उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया, आप उससे मुत्तफिक है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये पूछा कि सही मुतय्यन है मुतबय्यन है, तो आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज ये है कि अब आप मुझे बताएं कि जो आपके फतवे से मुत्तफिक है, अब मुझे बताएं इलियास अस्गर कादरी को जो मुसलमान समझे वो काफिर हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ। अरे नहीं यार, आप जिस फतवे से अल्लामा ताहिर काजी को जो मुसलमान माने वो क्या हुआ? ओहो, अल्लामा ताहिर काजी साहब नब्बरल्लाहु मरकज़हू, यानी कि बरेली के उलमाए बरेली ने जिसके ऊपर फतवे दिए हैं वो अल्लामा है। वो अल्लामा है। क्यों जलन मचती है इतनी? अल्लामा ताहिर काजी के नाम आने के बाद क्यों जलन मचती है? क्या वो भजन कीर्तन करता है? क्या वो ईसाइयों के अंदर जाकर मूर्तियों को पूछते हैं? क्या उनको क्या जलन मचती है बरेलियों को? इतनी क्या जलन मचती है इसके नाम से, अल्लामा ताहिर काजी साहब के नाम? और इलियास काजी के नाम से एकदम खुश हो जाते हैं कि नहीं मोमिन है। जबकि उन्होंने कभी अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बंटवाया, अपना मिलाद नामा नहीं पढ़वाया, लब्बैक या ताहिर काजी के नारे नहीं लगवाए, उन्होंने ऐसे झूठे ख्वाब नहीं लिखे, अपने झूठे ख्वाब लिखे क्या? मैं बोलूँ कुछ?
तो इलियास काजी ने फिर सुना कितने झूठे ख्वाब लिखे, अब क्यों कटवाए? मान लिया कि मक्कार में झूठे हैं। कहने का मतलब है आप एक नहीं 1000 बातें करें ऐसे, लेकिन क्या ताहिर काजी साहब ज़कात चंदे खरीद जमा करते हैं, ज़कात सदके जमा करते हैं? क्या तबलीगी जमात वाले चंदा करते हैं इस तरह से? अब आजकल तुम्हारी बड़ी दोखुआ ही नहीं भाई, अब नहीं देखता तुम्हारे। अच्छा जब तुम बोलने नहीं देते। अच्छा बोलो साहब। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब इलियास अत्तर कादरी को जो मुसलमान नहीं, आप तो बहुत बड़ा वली बनाओ, बहुत बड़ा वली मानो, आपकी मर्जी यार। जब आप तो ये मानो मेरे पीर हज़री में ऐसे ही बड़े वली हैं। अरे ये कोई बात हुई क्या यार? अरे नहीं मानो, आप तो मानो, या तो ये कह दो इलियास काजी कितनी गुस्ताखियां करे, आला हजरत को मानता है मोमिन मानेंगे और ताहिरुल काजी को काफिर मानेंगे, बस साफ साफ। ये गलत बात है। हाँ, आप मेरी नहीं क्लियर करो ना, अभी आप ताहिरुल काजी को काफिर मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मैं जवाब दे, क्योंकि बरेली का फतवा तो बरेली का फतवा क्या इस पर नहीं है, इलियास काजी पे नहीं है क्या? नहीं, जो जवाब दे दिया आपको, आपने 100 गलतियां गिना रही। आप इलियास अत्तर कादरी की 100 नहीं 1000 गलती आपने जैसे मिसाल के तौर पर गिनवा दी। उसका नतीजा ये निकला, आपने कहा कि इस पर कुफ्र का फतवा है। तो अब मैं उसको ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, जो उस कुफ्र की बुनियाद आप जो कह रहे हो कि फतवा मैं मानता हूँ उस कुफ्र के फतवे को, तो मुझे बताओ जो इलियास अत्तर कादरी को मुसलमान समझे उसके ऊपर भी वो फतवा लगेगा या नहीं लगेगा? बात खत्म। और जो ताहिरुल काजी साहब को मुसलमान समझे, मैं अभी यहाँ मैं इलियास अत्तर कादरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ताहिरुल काजी को, जो हज़रत अल्लामा ताहिरुल काजी इमामुल मुहक्किकीन अल्लामा ताहिरुल काजी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब जो ताहिरुल कादरी की बात कर रहे हैं ना, अब वो भी जवाब सुन लीजिए। ताहिरुल कादरी के जो भी नजरियात है, ठीक है, जो भी अकायद और नजरियात उसने बयान किया उसकी किताबों में और उलमाए अहले सुन्नत ने उसके ऊपर फतवे जो लगाए हैं, उन अकायद और नजरियात की बुनियाद पर। सुने ना, अब देखिए जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप सुन लीजिए। अब इलियास का जो क्या है ताहिरुल कादरी के जो भी अकायद और नजरियात इलियास काजी पे नहीं लगे, मैं 3 दिनों अगर बात नहीं सुनेंगे तो फोन काटूंगा, बात खत्म। कोई मतलब नहीं आता। मतलब इलियास काजी को इतना बड़ा, हाँ क्या बात है यार, दलाली कर रहे हो ना, सरकार सबसे खैरात खिलाता हो। ताहिरुल काजी काफिर है, ताहिरुल काजी, और मक्के के लोग मुसलमान नहीं है, ताहिरुल काजी मुसलमान। बताओ, मक्के के सैयदों को मुसलमान नहीं मानेंगे लोग, दलाली कर रहा हूँ। फिर तो इमाम मेहदी को भी नहीं मानेंगे लोग, ये इनके जमाने इमाम मेहदी आने उनको भी नहीं मानेंगे, कह देंगे मसले के हालत को नहीं मानते, हम नहीं मानते। अब कादियानी नहीं कह दोगे तुम तो इमाम मेहदी के बारे में भी नहीं मानो, उनको भी नहीं मानोगे। अगर वो आज के दौर में हो मसले के हालत का इनकार कर देंगे तो नहीं मानोगे तुम लोग, हकीकत बात करो सर। कादियानी की भी दलाली करो। अरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे, तुम तो उनको भी नहीं मानोगे। पहले खड़े होने के ऊपर, अंगूठा नहीं चूमने के ऊपर, ये सब बातें नहीं करेंगे जो तुम करते हो, तो उनको भी नहीं मानोगे, शक करोगे। वो जाते वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनको कहेंगे नहीं मानते मसले की हालत। अंगूठे को सुनना हकीकत में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जावेद इस्लामी वाले नहीं मानेंगे उनको, अगर इमाम मेहदी इस्लाम दायर हो जाएंगे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, अंगूठे सुनना फर्ज है? क्योंकि दमिश्क के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं है दावत इस्लामी वालों का, जामे मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ाएंगे, और दावत इस्लामी वालों का वजूद तक नहीं है, वजूद तक नहीं है दावत में। अरे अंगूठा सुनना फर्ज है? नहीं, ये जामे अजहर मिस्र में वजूद भी नहीं है दावत इस्लामी वालों का, बरेली वालों का, इस्लामुल हरमैन को मानते नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएं, जामे अजहर मिस्र वाले तो अल्लामा ताहिरुल काजी को मोमिन मानते हैं। बोलने दोगे ना? हाँ ठीक है। अब फिर वही मैं बहस करूंगा कि ताहिरुल कादरी की रही बात, ताहिरुल कादरी के जो फतवे लगे हैं ना, तो उसके अकायद और नजरियात पर लगे हैं। तो काफिर मानते ही हो तो आपका अकीदा हमें मुझे मालूम है बरेली वालों का, लेकिन इलियास काजी की सारी बातें खत्म, सारी छुपा जाते हो। तो इलियास कादरी पे फतवा ही नहीं लगा। सुन्नत में लिखा कि अल्लाह के सूख खड़े और ये बैठा हुआ सफ़े 31, वो तुम्हें हजम है। सफ़े 27 में लिखा कि जितने लोग इसके इज्तिमा में गए सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के सूख का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं, वो सब तुमने हजम कर ली इलियास काजी की। सफ़े 3 में लिखा कि ये किताब बारगाह इरशाद में मकबूल है, वो झूठा ख्वाब भी तुमने हजम कर लिया, और अल्लाह के सूख को मीठे मीठे रसूल के अलवाया मदीना शरीफ का मजाक बनाया, वो सब तुमने हजम कर लिया। और इसने अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब बैठ कर दिया, कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा, जबकि तरकी का बादशाह तखत से नीचे आ गया था, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर तखत से नीचे आ गया था, और इलियास काजी कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है। वो सब बातें तुमने हजम कर ली कि इलियास काजी ज़कात खिला रहा, सदके खिला रहा, बकरे मुर्गे खिला रहा है। तो खाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, ज़कात खाओ, सदके खाओ, खैरात खाओ, और अरब वालों को काफिर मानो, तुम्हारी मर्जी। हज करने जाते क्यों?
जब अरब वाले मुसलमान तो क्यों जा रहा हो हज करने, क्यों जा रहा हो कुर्बानी करने, कुर्बानी का गोश्त किसको दे के आते हो जब वहाँ पर सब काफिर है, और वहाँ पर वहाँ की छुरियाँ क्यों इस्तेमाल करते हो, वहाँ के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हो, वहाँ से वहाँ अगर तुम हाजी मर जाएगा तो कौन सा तुम्हारा यहाँ से बरेलवी जाके नमाज पढ़ाता, वहीं का इमाम हरम नमाज पढ़ाता, क्यों जा रहा हो हज करने तुम अपना? तीन जुमे छोड़ोगे तो 7 जुमे छूटेंगे तुम्हारे हज में 40 दिन में, तो तुम्हारे काय का हज हो जाएगा। हुजूर फरमाते जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पे डाल दिया। सारी दुनिया के लोग पागल हैं जो नमाज पढ़ते, 50,000 आलिम कमबेश नमाज पढ़ते, मुहद्दिस नमाज पढ़ते, मुफस्सिर नमाज पढ़ते, 50,000 दुनिया के, वो सब क्या गुमराह हैं तुम्हारे साथ? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।